آج کی ویڈیو عزیزو آپ کی خدمت میں جو پیش کر رہا ہوں یہ تھوڑی سی لمبی ویڈیو ہے اور گزارش یہ ہے کہ مہربانی فرمائیں ٹائم بنائیں اور ٹائم بنا کر اس کو پورا واچ کریں تاکہ آپ یہ 40 سٹیپ مکمل طور پر ایک مرتبہ دیکھ سکیں۔ دوستوں نے بڑا اصرار کیا کہ پورے 14 سٹیپ فارمولہ ایک دفعہ پھر بنا کر دکھائیں پورے کا پورا، تو آج کی ویڈیو میں عزیزو یہ 40 سٹیپ مکمل کر کے آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پیش کر رہا ہوں۔ تو عزیزو پہلی گزارش تو یہ ہے کہ مہربانی فرمائیں اور ویڈیو کو پورا واچ کریں۔ اگر آپ بوریت محسوس کریں تو چھوڑ دیں، جب آپ فری ہو جائیں اور ٹرینکوئلٹی میں آ جائیں تب آپ اس کو دوبارہ چیک کر لیں اور دوبارہ دیکھ لیں، کیونکہ اس کے اندر آپ کے لیے فوائد ہیں۔ تو اس سے آگے عزیز دوستو دوسری گزارش یہ ہے کہ یو فین پر مکمل یہ فارمولہ موجود ہے اور یو فین پر ہم نے دوبارہ کتاب بھی اپلوڈ کر دی ہے۔ جو بک لکھی گئی تھی پہلے اس میں کچھ کمی بیشی رہ گئی تھی، اب دوبارہ اس کو درست کیا ہے اور ایک نئے چینل یعنی یو فین پر اس کو اپلوڈ کر رہے ہیں۔ تو اس کا لنک اس ڈسکرپشن کے اندر، اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن کے اندر موجود ہے، آپ وہاں سے کلک کر کے یو فین پہ آ جائیں۔ اور پوری کتاب جو اردو میں لکھی گئی ہے عزیز دوستو، لاٹری وغیرہ جیتنے کے لیے تمام فارمولے اور ضروری چیزیں جو چیز بھی آپ کے لیے فائدہ مند ہے وہ ساری کی ساری وہاں پہ رکھی گئی ہیں بک کے علاوہ بھی۔ جو دوست یو ایس بی نہیں لے سکے ان سے گزارش ہے کہ آپ وہاں سے تھمب نیل کو دیکھیں، وہاں پر جو پوسٹ موجود ہیں ان پوسٹ کو پڑھیں، اور اگر اس پوسٹ کے ذیل کی چیز آپ ویڈیو میں دیکھنا چاہیں تو اس کو کلک کریں، وہیں سے آپ اس کے متعلقہ ویڈیو پر لانچ کر جائیں گے اور وہاں پر جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی جس طرح فرض کر لیں آپ کارڈ کی پوسٹ کو دیکھ رہے ہیں، تو اگر آپ کارڈ کی ویڈیو دیکھنا چاہیں اور اس کی ڈیٹیل جاننا چاہیں تو کارڈ والے تھمب نیل کو یو فین پر آپ کلک کریں، تو وہاں سے ڈائریکٹ آپ اس ویڈیو پہ لانچ کر جائیں گے جہاں پر وہ ویڈیو موجود ہے، تو وہاں سے وہ آپ ڈیٹیل کے ساتھ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں، سمجھ بھی سکتے ہیں۔ تو آئیے آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، مائی سیکرٹ ڈائری اردو یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو۔ تو آج کی ویڈیو میں دوستو 40 سٹیپ فارمولہ ایک مرتبہ پھر دوستوں کے اصرار کے مطابق دوبارہ بنا رہا ہوں۔ بہت سارے عزیزوں نے یہ میسج کیا اور یہ گزارش کی کہ اس کو پورا کریں اور پورا کر کے لکھ کر ایک مرتبہ پھر بنائیں۔ جو نئے دوست اس چینل پر آئے ہوئے ہیں ان کے لیے یہ طریقہ کار ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں دوبارہ پیش کر رہا ہوں۔ تو امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی یہ ویڈیو آپ کے لیے اہم اور انفارمیٹیو رہے گی دوستو، لیکن 40 سٹیپ فارمولے کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک مرتبہ گزشتہ تھائی لاٹری رزلٹ جو آیا تھا وہ دیکھ لیتے ہیں، اور جو آپ کے ساتھ حساب کتاب شیئر کیا گیا تھا اس کو بھی ایک مرتبہ آپ دیکھ لیں دوستو۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں دوستو یہ تھا وہ سابقہ تھائی لاٹری کا حساب، اور اس حساب کے مطابق جیسا کہ یہ دو سابقہ نمبر یہاں پر رکھے گئے، اس کے مطابق عزیز دوستو اس میں سے 25 کا نمبر جو ہے یہ فرسٹ کے لیے ون ہوا ہے، یہ 25 کا نمبر، اور یہ پیکٹ کے اندر یہاں پر موجود تھا 25 کا نمبر، اور یہ 91 کا نمبر جو ہے یہ موجود تھا دوستو، یہ بھی ون ہوا ہے سیکنڈ میں، اور 05 کا نمبر یہ موجود تھا جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہ بھی ون ہوا سیکنڈ میں، اور 23 کا نمبر 23 یہ بھی ون ہوا سیکنڈ میں اسی پیکٹ کے اندر سے۔ تو 3 سیکنڈ اور ایک فرسٹ اسی پیکٹ کے اندر سے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں دوستو اس پیکٹ کے اندر سے ہی یہ چاروں نمبر ون ہوئے۔
अब आ जाएं जज़र की तरफ। जज़र लगाने के लिए दोस्तों जो गुजारिश की थी, एक तो मैंने ये गुजारिश की थी कि इस तरफ से इन दोनों अदाद को आप मिलाएं और इसके साथ जज़र दें, और दूसरी जज़र थी इस तरफ से, यानी इन दोनों को मिलाएं और इन दोनों के साथ जज़र दे के 130 के साथ आप इसको अप्लाई करें तो इंशाअल्लाह ताला नंबर आपके सामने आ जाएगा। और इसी तरह से जब आप 40 स्टेप मुकम्मल कर लेते हैं तो जो फाइनल सतरें यहाँ पे बनती हैं, इन्हीं फाइनल सतरों को जमा करके ये कोड बन जाएगा, और कोड को भी इसी तरह से जमा करके उसकी मीज़ान बना लें। जिस तरह ये ऊपर वाली मीज़ान बनती है सेम उसी तरह से, और उसके तहत ये जो दोस्तों आप देख रहे हैं ये तरीक़ेकार, यानी नीचे से ऊपर आप क्रॉस वाइज नहीं किया जाएगा, क्योंकि जब आप कोड बना लेते हैं 40 स्टेप मुकम्मल कर लेते हैं तो ये नंबर सीधे हो जाते हैं। यहाँ पे क्रॉस वाइज नहीं, यहाँ पे सीधी जदरें ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर ही हमेशा इस्तेमाल की जाती हैं। तो इसके मुताबिक अजीज़ दोस्तों यहाँ से जदर देकर आपने 165 के साथ अप्लाई करना था और उसी के साथ आपने नंबर लेना था। तो जैसा कि मैं आपको एक मरतबा फिर जज़र लगा कर दिखाता हूँ ताकि आप समझ जाएं कि जज़र। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पे गुजारिश की थी कि यहाँ से आप इस तरह से क्रॉस वाइज जज़रें लगाएंगे, तो आज की वीडियो में ये जज़र लगाने का तरीका एक मरतबा फिर आप गौर से समझ लें ताकि आप भी इस तरह से विक्ट्री हासिल कर सकें। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस पैकेट के अंदर से दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 56 टोटल नंबर थे, और इन 56 में से जज़रों के एतबार से हमने ये जो नंबर हैं ये डायग्नोज किए थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। तो इन्हीं में से आप देख सकते हैं कि एक फर्स्ट और 3 सेकंड नंबर विन हुए, लेकिन किस तरह से बाकी फालतू नंबर आपने छोड़ने और किस तरह से आपने ओरिजिनल नंबर पर पहुंचना है, उसके लिए आपको यहाँ से कोड के एतबार से या ऊपर से जज़र लगाकर आप कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए ये जो जज़रें आपके साथ शेयर की गई थी, यहाँ से फर्स्ट के लिए गुजारिश की थी कि इस तरफ से अगर आप जज़र लेकर चलें 95 करके तो इसके साथ अप्लाई करें, लेकिन ये जज़र यहाँ से अप्लाई नहीं हुई और नहीं चली। इसके अलावा दूसरी जज़र ये गुजारिश की थी कि आप इस तरफ से जज़र को चलें 5 और 7 को लेकर, जैसा कि ऊपर 74 है और नीचे 55 है, तो ये 5 और ये 7, 74 का 7 और 5 55 का, इनको आपने क्रॉस वाइज इस तरह से मिलाना था। और इस तरह अगर आप इसको 52 कर लें, यानी 7 का घर ले लें, जैसा कि इसका घर लिया इसी तरह इसी का इसका भी घर लें, 52 कर लें, तो और इसको आप 18 करें, 52 18। तो ये है वो त्रई का नंबर 23 नंबर, जो कि इसी तरह से आ सकता है क्योंकि 2 की अपनी कोई जज़र नहीं होती, 2 हमेशा 7 के साथ ही मिलकर आता है। तो ये है वो त्रई का नंबर दोस्तों, जो कि यहाँ पर सेकंड में ये विन हुआ। और इसी तरह से अगर आप मज़ीद इसको जज़र दें यहाँ से दोस्तों, यानी आप फर्स्ट के लिए अगर आप यहाँ से इसको जज़र दें तो ये कर लें आप इसको मेरे अजीज़ों 52 35 इस तरफ से। तो ये है वो, सॉरी अजीज़ों 52 53 करें, 25 53 किया, तो ये है वो 25 का नंबर। 25 53 करने से इसको 2 किया और यहाँ से ऊपर से नीचे 25 किया, तो इसके साथ 53 करके आप अगर जज़र दें, यानी इसको 25 53 लिखें इस तरह से, 25 53 लिख कर कैलकुलेटर पर जज़र दें, यानी ये पहले लिखें कैलकुलेटर पर इस तरह से 25 53, इसको आपने 5 में कन्वर्ट किया, ठीक है, और उल्टा किया, और ये जो 2 है इसको आपने 2 में कन्वर्ट किया और नीचे क्रॉस वाइज यहाँ पर लेकर आए 25 किया, तो 25 53 लिखने के बाद जज़र का बटन प्रेस किया तो ये 52 निकला, यही उल्टा होकर 25 का नंबर ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से ये विन हुआ। इस एतबार से देखिए मसला ये हुआ था अजीज़ों के दोनों तरफ से नंबर चल सकता था, हम भी जानते थे कि चल सकता है दोनों तरफ से, क्योंकि जब एक ही जैसे दोनों डिजिट मौजूद हों
5 दोनों डिजिट एक ही जैसे मौजूद हों तो चाल इस तरफ से इस तरफ या इस तरफ से इस तरफ जा सकती है। तो अगर दोनों चालें इस्तेमाल करें तो ज़ाहिर है नंबर ज़्यादा बन जाते हैं। तो फिर दोस्त कहते हैं कि इतने ज़्यादा नंबर क्या करें जी, इतने ज़्यादा नंबर ना बनाएं। तो इस वजह से मैंने सिर्फ एक साइड आपके साथ शेयर की थी, दूसरी साइड आपके साथ शेयर नहीं की थी, और ये दूसरी साइड से ही नंबर यहाँ से विन हुआ जैसा कि आप देख रहे हैं। तो इसके अलावा मेरे दोस्तों अगर आप इसको 25-35 कर लें, यानी 25-35 करें तो 25-30 किया, ये 09 का नंबर निकल रहा है जहाँ ये जो मैंने आपके साथ निशानदेही की हुई थी। बहरहाल इसके अलावा दोस्तों नीचे अगर कोड की तरफ आप आ जाएं तो कोड पर मैंने आपके साथ ये जो निशान लगा कर दिए थे, अब इसको आप छोड़ दें। ना ज़रब ना जमा ना तफरीक वाला कायदा सिर्फ ऊपर तक ही होता है। अगर यहाँ से काम नहीं बन रहा तो इसको छोड़ के आप नीचे ये जो 40 स्टेप के फाइनल कोड है इस पर आ जाएं और इसको यूज़ करें। इसको यूज़ करने का भी वही तरीका है, सिर्फ इसको क्रॉस वाइज नहीं करना, आपने सीधा इस्तेमाल करना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं 31 ऊपर है और 34 नीचे। अगर आप इन सतरों को जमा करें आपस में अदाद को तो ये 31 बनते हैं और नीचे वाले अदाद 34 बनते हैं। ठीक है जी, इसी तरह से आप इनको लिख लेंगे 31/34 और फिर इस 31 और 34 को जब जमा किया तो इसकी जमा का आपने मीज़ान बना लेनी है और यहाँ पे आपने लिख लेनी है, बस इतना काम है। फिर उसके बाद जब ये कोड हासिल हो गया दोस्तों तो इस कोड के एतबार से आप इस पैकेट में से नंबर जनरेट करेंगे। किस तरह से, मिसाल के तौर पे आप इसको लिखें 14 लिखें ऊपर से नीचे की तरफ, जैसा कि ये आपको निशान लगा के दिया गया था। 14 कर लें और 14 को इस 16 के साथ अप्लाई करें। 14 16 किया, जज़र का बटन प्रेस किया तो ये है 32, 3 और 2। ये जो पहला और चौथा नंबर होता है यही हमेशा नंबर होता है जज़र के एतबार से। तो इस तरह से ये दोस्तों 23 का नंबर यहाँ से भी इसी तरह बरामद हुआ। ज़रूरी नहीं कि आप दोनों तरफ से ही जज़रें देकर प्ले करें। देखें, जज़रें आपके पास 15 दिन का वक्त होता है, दोनों तरफ से जज़रें देकर जो जो नंबर जनरेट हों वो अलग से लिख लें और लिखने के बाद उनको मैच करके देखें कि कौन कौन से नंबर हैं जो दोनों तरफ से हाउ बहू उसी तरह से आपके सामने निकल रहे हैं, और वही नंबर काबिल अमल होते हैं और उन्हीं में से कोई ना कोई नंबर जो होता है वो विक्ट्री हासिल कर लेता है। तो इसी तरह से अजीज़ दोस्तों यहाँ से मैंने गुजारिश की थी कि अगर आप ये साइड इस्तेमाल करें फर्स्ट के लिए तो यहाँ पे इस 4 को 9 में ले लें, तो सॉरी सेकंड के लिए तो इस 4 को आप 9 में ले लें और 91 करके जज़र दें। और अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ जज़र देंगे तो इसको 6 कर लें और नीचे 64 की जज़र दें। 64 तो नहीं चली, अलबत्ता 91 की जज़र इस तरह से चली 91, और ये 65 इसके साथ लगाया, सॉरी 96, इसको 6 में कन्वर्ट करना था 96, और ये 65 जो आप मीज़ान का देख रहे हैं 96 65 लिखा, यहाँ से जज़र का बटन दबाया तो ये है 91 का वो नंबर दोस्तों जो यहाँ पर मौजूद है और सेकंड में विन हुआ इस तरह से। तो अजीज़ दोस्तों ये मुख्तसर सा तारुफ है। इसी तरह आप देख सकते हैं अजीज़ों कि अगर आप ऊपर से ना जमा ना ज़रब ना तफरीक वाला ये कायदा इस्तेमाल करते तो यहाँ से आपको यानी इस तरह से 25 और इसको 31 किया, जज़र का बटन इस तरह से दबाया तो ये है वो 05 का नंबर जो कि यहाँ पे सेकंड में उल्टा होकर विन हुआ, जैसा कि आप देख रहे हैं। मेरे अजीज़ों यही फ़र्क होता है बात को समझने का और चाल चलने का, और इसी चाल के तहत आप ये कामयाबी हासिल कर सकते हैं। और अगर यहाँ से आप 05 नहीं पकड़ सकते थे तो यहाँ पे मैंने ये निशान लगा कर दिया था, इसको आप 33 कर लें, 33 को 33 ही रहने दें और 33 को आप इसके साथ अप्लाई करें। तो इसमें से फॉर एग्जांपल अगर आप ये करते तो 33 16 किया दोस्तों तो इस तरह आया 58 का नंबर, और वो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 58 मौजूद कोई नहीं, और फिर इसके अलावा 85 यहाँ पर मौजूद है तो ये आप रख सकते थे, एक हो गया। और इसके अलावा 33 को आप 65 के साथ जज़र दें
تو یہ 05 کا نمبر جو ون ہوا ہے دوستو، یعنی 50 یا 05 دونوں میں سے کوئی ایک نمبر قابل ون تھا اور وہ 05 یہاں پہ ون ہوا۔ تو عزیزو اس طرح سے آپ جذریں دے کر اس پیکٹ کے اندر سے نمبر جنریٹ کر سکتے ہیں، اور آنے والے ڈرا کے لیے جو نمبر آپ بنائیں گے وہی آپ پلے کریں، چاہے آپ پرائز بونڈ بنا رہے ہیں، ریتمو بنا رہے ہیں، یا پھر آپ تھائی لاٹری بنا رہے ہیں، اسی حساب کے ساتھ آپ اس کو بنا سکتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ جو کلیہ دوستو 40 سٹیپ فارمولہ ہے یہ ایک اتھینٹک اور صحیح فارمولہ ہے۔ اس کے لیے حلفاً کہتا ہوں کہ یہ بہترین فارمولہ ہے، لیکن اس کو سمجھ کر اور اچھی طرح سے اس پر عبور حاصل کر کے ہی آپ اس میں سے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ آئیے آج آپ کے سامنے یہ جو 40 سٹیپ فارمولہ ہے اس کو آگے لے کر بڑھتے ہیں دوستو، اور یہ بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ اس کو بنانا سیکھ جائیں اور سمجھ جائیں۔ تو یہاں پہ ہم نے سب سے پہلے ترکیب 2 میں دوستو ہم نے نمبر لینے ہوتے ہیں، یہ جو سابقہ 2 نمبر ہمارے پاس وننگ آنکڑے ہیں 59 اور 84، اور پھر ان کو جمع کیا، یہاں پہ سمپل جمع کیا، اور جو جمع حاصل ہوئی ہمیں اس جمع کے ساتھ ہم نے یہ میزان قائم کر لی۔ میزان بنانے کا طریقہ بے شمار ویڈیوز میں اس سے پہلے میں بیان کر چکا ہوں دوستو، اگر آپ دوستوں کو نہیں سمجھ آئی یا کسی دوست کو ابھی تک نہیں پتا تو وہ یو فین پہ جا کے وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں، اور یہاں پہ بھی کسی ویڈیو میں موجود ہوگا، اور اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں رکھ دوں گا تاکہ آپ وہاں سے اس کو چیک کر لیں میزان کس طرح سے ترتیب دی جاتی ہے۔ بہرحال تھوڑا سا مختصر کرتے ہیں تاکہ آپ دوستوں کا قیمتی وقت ضائع نہ ہو دوستو، اور محنت اس پہ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، محنت ضرور کرنا پڑے گی، لیکن دوستو اس محنت کا فائدہ ضرور ملے گا، یہ طے شدہ امر ہے۔ اور پلس جو دوست اپنے ہاتھ سے کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، جو ان کا اپنا نصیب اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں لکھا ہوا ہے وہ اس کو پا کر رہتے ہیں۔ یاد رکھیں جو بندہ دوسروں پر اعتماد کرتا ہے اور دوسروں کے کاندھے پہ رکھ کے نشانے بازی کرتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوا۔ استاد کا کام ہوتا ہے آپ کو تعلیم دینا، آپ کو چیز کا سمجھانا اور سکھانا، اب کرنا آپ نے خود ہی ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ کہیں سے کوئی ڈرائیونگ سیکھتا ہے، فرض کر لیں تو دوستو ڈرائیور بننے کے لیے استاد نے اس کو ساری چیزیں سمجھا دی اور ڈرائیور بنا تو دیا، اب گاڑی تو اس نے خود ہی چلانی ہے نا، اس کی مرضی کہ اب وہ کس طرح سے چلاتا ہے، چاہے وہ ڈرائیور جو بنا ہے بندہ اپنے استاد کے مطابق چلاتا ہے یا وہاں سے رانگ چلاتا ہے، تو اسی صورت میں اس کا نتیجہ بھی اس کے سامنے ظاہر ہوگا۔ اس لیے گزارش کرتا ہوں دوستو کہ اپنے ہاتھ سے کام کریں، جو دوست تھوڑا پڑھے لکھے ہیں اس پر زیادہ کوئی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے، نارمل بندہ بھی کر سکتا ہے۔ اور اگر آپ نہیں بھی 40 سٹیپ بنا سکتے تو نہ جمع نہ ضرب نہ تفریق والا صرف اتنا قاعدہ سیکھ لیں جو کہ بہت ساری ویڈیوز میں پہلے بیان کیا جا چکا ہے اور چینل میں موجود ہے، آپ وہاں سے چیک کر سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ نہیں کرنا چاہتے، پورا فارمولہ جاننا چاہتے ہیں تو یہ سب سے اچھی بات ہے، کیونکہ 40 سٹیپ فارمولہ آسان بھی ہوتا ہے، اس کا فائنل جو کوڈ ہوتا ہے وہ بہت آسان ہو جاتا ہے اور سیدھا ہو جاتا ہے، اور دوستو پلس یہ ہے کہ کبھی کبھار اوپر سے نمبر نہیں بھی چلتا اور نمبر اوپر سے دائیں بائیں بھی گھوم جاتا ہے، لیکن نیچے سے اگر نمبر چلے تو اپنی روٹین کے مطابق ہی چلتا ہے۔ تو بہرحال ہم آج آپ کے سامنے یہ 40 سٹیپ مکمل کر رہے ہیں دوستو، تو یہاں پہ ہم نے 9 اور 4 چونکہ ایک ہی گھر کے ہیں تو اس لیے یہاں پہ ہم اس کو 45 کر لیں گے، 45 لکھا اور پھر 5 کو 8 کے ساتھ ملا کر 58 لکھا دوسرے سٹیپ میں۔ اب تیسرے سٹیپ میں ہم نے ان میں سے مسنگ اعداد جو ہیں وہ پورے کرنے ہیں، اگر کوئی مسنگ نہیں ہے تو دائیں بائیں ایک ایک عدد بالترتیب لگانا ہے، یعنی کس طرح سے دیکھ سکتے ہیں آپ کہ یہ پہلے 45 ہے تو اس کے درمیان میں کوئی عدد مس نہیں، تو پہلے 3 لکھا، پھر 4، پھر 5 اور بالترتیب آگے 6 لکھ دیا۔ پھر ہم نے اس حصے کو چیک کیا تو یہاں پہ 5 اور 8 کے درمیان اعداد مس ہیں، تو جو مس ہیں وہ لکھ لیں گے، 6 مس ہے، 7 اور 8 موجود ہے، اس لیے یہ بھی 4 ہو گئے، یہ بھی 4 ہو گئے۔ ٹھیک ہے دوستو، تو سٹیپ 4 میں جانے کے لیے ہمیں ہمیشہ 4 عدد یا 5 عدد ہی چاہیے ہوتے ہیں۔
अगर 5 अदद हो जाएं तो भी ठीक, अगर 4 हो जाएं तो भी ठीक, अगर इससे ज़्यादा हो जाएं तो दाएं बाएं के बिल तरतीब अदाद छोड़ के आप उसको 4 या 5 में बकाया जो आपके पास बचे वो लेकर आपने यहाँ पे दोबारा लिख लेने हैं। यानी यहाँ पे बना 3 4 5 6, यही वाला, ये जो आपने हासिल किया। और यहाँ पे बन गया दोस्तों 5 6 7 और 8। अब तरकीब 5 के लिए ये जो दरमियान वाले दोनों अदाद हैं इनको एक दफ़ा जमा करेंगे और जमा करने में हासिल छोड़ देंगे, फिर इसको ज़रब करेंगे और ज़रब पूरी दर्ज करेंगे। 5 4 9 हुआ, हासिल है कोई नहीं इसलिए 9 का 9 लिखा। फिर इसको आप एक मरतबा ज़रब करें तो ये 20 हुआ दोस्तों, यहाँ पे 20 लिख दिया। इसी तरह से इसको भी करें, ये हो गया 13, यानी 6 6 12 और एक 13 हुआ, 13 का 3 ले लेंगे, एक को छोड़ देंगे, फिर इसको ज़रब करेंगे और ये हो जाएगा 42 42। तो यहाँ पे हमने तरकीब 5 के लिए यहाँ पे ये जो रकमें आप देख रहे हैं ये बना लें। अब तरकीब 6 में हम तरकीब 4 और 5 में हासिल होने वाले अदाद को एक सतर की शक्ल में बना लेंगे। यानी यहाँ पे लिखा 3 4 5 6 9 2 और 0, ये सारे अदाद हमने इस तरह से एक सतर में लिख लिए। इसी तरह से आगे का जो स्टेप है ये वाला, इसको भी आप यहाँ पे इसी तरह तहरीर कर लें। 5 6 7 8 3 4 और 2। और अगर कोई अदद यहाँ पे दोबारा आ जाए, मुकर्रर आ जाए दोस्तों, तो उसमें से एक अदद छोड़ दें और एक लिख दें, बस इसका यही तरीका है। अब जब कि आपने तरकीब 6 मुकम्मल कर ली तो ये जान लें यहाँ पे दोस्तों कि ये जो आपका पहला हिस्सा है 94, इसको 9 तो हमने छोड़ दिया क्योंकि ये इसी का हिस्सा है। ज़रूरी नहीं कि आप 94 की चाल रखें, आप इसको 45 भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो हिस्सा है पहला, ये इकाई का हिस्सा है। इस तरफ से आप देख सकते हैं कि ये जो अदाद निकल कर आ रहे हैं, पहले 45 था, फिर ये 34 56 हो गया, फिर 34 56 की जगह पे 34 56 920 हो गया। यानी इस तरह से ये हिस्सा जो है ये इकाई का हिस्सा है, और ये जो इस तरफ से आ रहा है 58 के नीचे से, ये हिस्सा आप देख रहे हैं ये दाई का हिस्सा है। ठीक हो गया जी। अब इकाई का हिस्सा आप ऊपर रखेंगे और दाई का हिस्सा आप उसके नीचे रखेंगे तरकीब 7 में। ये दोनों सतरें जो आपके सामने निकली हैं, हम यहाँ पे इनको ऊपर लिखेंगे 3 4 5 6 9 2 और 0। और इसके नीचे ये अदाद जो निकले हैं ये लिखेंगे दोस्तों, यानी 5 6 7 8 3 4 और 2, इस तरह से। तो तरकीब 7 में हमने ऊपर नीचे कर ली थी ये दोनों सतरें, सिर्फ इतना ही काम करना है आपने। देखें स्टेप का मतलब ये है दोस्तों कि आपने हर अगले स्टेप में एक दर्जा आगे बढ़ना है और उसकी तरतीब बनानी है उन अदाद की जो आप लेकर आ रहे हैं। याद रखें नंबर निकालना इतना आसान काम कोई नहीं होता है दोस्तों, ये वैसे ही है जैसे समंदर में से मोती निकालना। तो इसके लिए आपको थोड़ी सी तवज्जो और मेहनत ज़रूर करना पड़ती है। जो दोस्त ये समझते हैं कि ये बहुत आसान है और बस ऐसे ही निकल आता है, तो ये उनका अपना ख्याल है, हम क्या कह सकते हैं जी। तो बहरहाल अब आगे बढ़ते हैं और तरकीब 8 बनाते हैं। तो तरकीब 8 के लिए दोस्तों हमने क्या करना होगा, ऊपर और नीचे ये दोनों जो सतरें हैं इनकी तादाद गिन लें अदाद की। यानी 1 2 3 4 5 6 7 अदाद ऊपर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7 ही अदाद इसके नीचे हैं। तो ये 7 7 टोटल हुए, इनको आपस में ज़रब दे दें। 7 को 7 के साथ जब मल्टीपल करेंगे, ज़रब देंगे, तो ये बन जाएगा 49। तो यहाँ पे हमने लिखा 49 तरकीब 8 में। अब इसी तरकीब के नीचे हम सिर्फ ऊपर वाली सतर के अदाद को एक मरतबा डबल कर लेंगे, वो 7 हैं। तो 7 में 7 मज़ीद जमा किए तो ये दोस्तों बन गए 14। जब 14 मुकम्मल हो गए, अब देखेंगे अगर इस सतर के अंदर 0 मौजूद है इस सतर के अंदर, तो 14 में से एक अदद कम कर दें, और अगर 0 मौजूद नहीं है तो 14 में एक अदद बढ़ा कर लिखें। यानी फिर आप उसको 15 करके यहाँ पे लिखेंगे।
अब चूंकि इसके अंदर ज़ीरो का अदद मौजूद है, लिहाजा यहाँ पे हमने 13 लिखा दोस्तों। 13 लिखने के बाद इनको सिंपल जमा किया, यानी 9, 10, 11 और 12, 12 का 2 आ गया, असल 1, 4 और 1 5 और 6, ये हो गया 62। तो तरकीब 9 में हमने इस 62 को लिख लिया। अब तरकीब 10 के लिए दोस्तों हमने क्या करना है कि ये जो 62 निकला है इसका हमने डेवडा लेना होता है, यानी 1.5 गुना इसको करना होता है, 1.5 गुना। याद रखें ये करना ज़रूरी है। स्टेप 8, स्टेप 9 और स्टेप 10, ये जो 3 तरकीबें हैं 8, 9 और 10, तीनों तरकीबें ये सिर्फ ये चेक करने के लिए होती हैं कि ये फाइनल सतरें जो बनी हैं साथ में आया यही रहेंगी या तब्दील हो जाएंगी। और अगर आपका डेवडा 81 या 81 से ज़्यादा हो, चाहे 81.5 ही क्यों ना हो, तो ये सतरें तब्दील हो जाएंगी। और अगर डेवडा आपका 81 या 81 से कम हो, यानी 80.5 ही क्यों ना हो, तो ये सतरें तब्दील नहीं होंगी और यही फाइनल सतरें आगे चली जाएंगी और फिर इन्हीं में से नंबर जनरेट होगा। तो अब यहाँ पे 62 का जब हम डेवडा निकालेंगे दोस्तों, तो 62 का आधा इसमें मजीद जमा कर लें, यानी इसका आधा बनता है 31। तो 62 में जब हमने 31 को जमा किया तो मेरे दोस्तों इस तरह से 62 जमा 31 किया तो ये 93 निकला। तो पता चला कि इसका डेवडा 93 होता है। तो ये तो 81 से ज़्यादा हो गया 93। अब इस वजह से हमने इन सतरों को तब्दील कर लेना है और तब्दील करके तरकीब 11 में हम इनको लिखेंगे। तब्दील करने का तरीका क्या है दोस्तों कि जो अदाद आपके सामने ऊपर मौजूद हैं, गिनती के टोटल 10 अदाद होते हैं 1 से लेकर 0 तक, और जो अदाद मौजूद हैं वो तो मौजूद हैं, जो मौजूद नहीं हैं वो निकाल कर आपने यहाँ पे तहरीर कर देने हैं। मिसाल के तौर पे इस सतर के अंदर अगर आप देखें तो 1 का डिजिट मौजूद कोई नहीं, 7 का डिजिट मौजूद कोई नहीं, और इसी तरह से 8 का डिजिट भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। फिर इसके अलावा दोस्तों नीचे वाली सतर को भी इसी तरह से करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखें तो 1 का डिजिट कोई नहीं, और उसके बाद 9 का डिजिट इसके अंदर नहीं है, और 0 का डिजिट इसके अंदर मौजूद नहीं है। तो ये वो अदाद हमने यहाँ पे तहरीर कर दी है तरकीब 11 में, जो इस तरकीब के अंदर मौजूद नहीं है। अब तरकीब 12 में हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो 178 निकला है इसको यहाँ पे 178 लिखा, इसके आगे ब्रैकेट का निशान डालें, और इसके नीचे दोस्तों 190 ये जो निकला है ये लिख के इसके आगे भी एक ब्रैकेट का निशान डालें, और ये तरकीब 12 का तरीक़ेकार होगा। अब आपने क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर वो अदाद लेकर आए जो जहाँ पे आपके पास ऊपर बने होंगे, चाहे यहाँ पे 4200, 4600, 4500 जो भी अदाद हों वो उठाकर यहाँ पे लिख दें। तो हमने 49 लिखा। फिर इसके बाद ये 3 अदाद हैं, इनको आपस में जमा ज़रब करेंगे, तो 3 को पहले हम 8 को 1 के साथ जमा करेंगे, 8 और 1 9 हुआ। फिर हम 8 चूँकि 1 के साथ ज़रब नहीं खा सकता, इसलिए हम 8 को 7 के साथ ज़रब कर लेंगे, और अगर इसके साथ ज़रब आ जाए, यानी अगर यहाँ पे 2, 3 या 4 का कोई और डिजिट होता तो फिर 8 को उसी के साथ ज़रब दी जाती, लेकिन चूँकि वो डिजिट 1 है और 1 के साथ ज़रब नहीं हो सकती, इस वजह से 8 को 7 के साथ ज़रब देंगे, तो 8 7 बार 56 हुआ, यानी यहाँ पे हमने 56 लिख दिया। फिर अब नीचे आ जाएं तो नीचे ये जो 190 है दोस्तों, ये ना तो आपस में जमा हो सकता है और ना ही ज़रब हो सकता है, क्योंकि इस तरफ 0 है और इस तरफ 1 है। तो इस वजह से ये जो ऊपर अदाद हमारे सामने बने हैं, यही अदाद इसी तरह से उठाकर हम नीचे सतर के अंदर भी ले आएंगे इसी तरह से। तो यहाँ से अजीज़ो 4 को ले लिया, और 9 चूँकि पहले से ही मौजूद है वो लेने की ज़रूरत कोई नहीं, ऊपर से 5 भी नीचे ले लिया, 6 भी नीचे ले लिया। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे हमने प्लस में 2 का अदद भी रख दिया इस तरह से। तो ये है वो फाइनल सतरें जो कि यहाँ पे हासिल हुई, और अब तरकीब 13 में हम इन्हीं सतरों को यहाँ पर लिख देंगे, यानी यहाँ से शुरू करके यहाँ तक मुकम्मल लिखेंगे।
1 7 8 4 9 9 चूंकि 2 बार आया है तो एक बार रख लेंगे, एक बार छोड़ देंगे, इसके आगे 5 और फिर 6। अब नीचे जो सतर है 1 9 0 4 5 6 और 2, तो ये वो फाइनल सतरें बनी हैं दोस्तों जिनका आपने कोड बनाना होता है, जिनकी आपने पैकेट बनानी होती है, और इसी कोड जो बनता है उसी के साथ आपको हमेशा नंबर दिखाया जाता है। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने थाई लॉटरी में ये कोड दिखाया था और ये इसकी फाइनल सतरें थी। ये बिल्कुल वही चीज़ है दोस्तों जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, यानी ये जो फाइनल सतरें हैं इन्हीं का कोड बनेगा इसी तरह से, और इन्हीं फाइनल सत्रों में से नंबर आएगा जिस तरह इन फाइनल सत्रों में से ये थाई लॉटरी का नंबर चला। तो दोस्तों यहाँ पे अब आप इनको गिन लें और इनकी तादाद के एतबार से नहीं बल्कि वैल्यू के एतबार से इनको आप जमा करेंगे। यानी आप देख लें 7 और 1 8 हुआ, 8 8 16 हुए, 16 4 20 हुए, 20 9 29 हुए और 29 और इसके अंदर 5 को मजीद जमा किया 34 और 6 40 हुए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दोस्तों 40 और इसके नीचे हम लिखेंगे 9 और 1 10 हुआ, 10 और 0 को भी एक ही गिनेंगे, ये 11 हुए, 11 4 15, 15 5 20 हुए, 20 और 6 को उसमें जमा किया तो 26 हुए, 26 में 2 मजीद जमा किए 27 और 28 हुए। तो यहाँ पे मेरे दोस्तों हमने 28 का डिजिट इस तरह से लिख दिया। ठीक हो गया जी। तो ये है कोड, ये है वो कोड दोस्तों जो कि आने वाले प्राइस बॉन्ड के लिए मुस्तमल कोड है। अब इसको जमा करें तो 8 का 8 हो गया, 4 2 6 हो गई, यानी 68 हो गया। 68 की जब मीज़ान बनाएंगे तो ये बनेगी 170 इस तरह से। ये है मेरे अजीज़ों वो कोड जो कि आपने यूज़ करना होता है हर गेम में, और इसी कोड के साथ ही आगे जो नंबर बनते हैं वो आप देख सकते हैं। अब 40 स्टेप जो बना है 14वीं तरकीब, यहाँ पे आप इन दोनों सत्रों के पैकेट बनाएंगे। पैकेट बनाने के लिए नीचे वाले अदद को ऊपर वाले अदाद के साथ एक एक बार मिलाते जाएं। यानी सबसे पहले 1 को 1 के साथ मिलाया 11 हुए, फिर 1 को 7 के साथ मिलाया 17 हुए, फिर 8 के साथ मिलाया 18, फिर 14 और फिर 19 और फिर 15, फिर मेरे दोस्तों 16। इसी तरह अब 9 की बारी है। 9 को 1 के साथ मिलाया 91, 97, 98, 94, 99, 95 और 96। फिर इसी तरह 0 की बारी है तो 01, 07, 08, 04, 09, 05 और 06। फिर 4 को भी इसी तरह से मिलाएं, 41 किया, 47, 48, 44, 49 और 45 और 46। फिर 5 की बारी आ गई। 5 को भी इसी तरह से मिलाएं, 51, 57, 58 और 54 और 59 और दोस्तों 55 और उसके बाद ये आ गया 56। फिर 6 की बारी है तो यहाँ पे लिखा 61, 67, 68, 64, 69, 65 और 66। फिर 2 की बारी आ गई, 21, 27, 28, 24, 29 और 25 और दोस्तों इसके अलावा 26। तो ये है अजीज़ों वो सतर जो कि यहाँ से हासिल हुई। अब एक मरतबा सिर्फ ऊपर वाली ये जो सतर है इसको आप यहाँ पे दाई में करके लिख लें, यानी 1 का 10 लिखें, 70 लिखें, 80 लिखें और इसके अलावा 40 भी लिख लें और फिर उसके बाद 90 और उसके बाद 50 और 60।
ये कुल वो नंबर है मेरे अजीज़ों जो कि आने वाले प्राइस बॉन्ड के लिए इन दो का बाल बच्चा है, यानी इन दो में से जो जनरेट हो सकते हैं वो कुल नंबर ये हैं। ज़रूरी नहीं कि ये पैकेट पूरी की पूरी प्ले की जाए, ज़रूरी नहीं कि आप पूरी पैकेट पर फोकस करें, आप कोड इस्तेमाल करें या फिर ना जमा ना ज़रब ना तफरीक वाले कायदे के तहत सिर्फ इतना हिस्सा इस्तेमाल करें और उस पर जज़र लगाएं या कोड के साथ जज़र लगाएं। इंशाल्लाह ताला इसी पैकेट में से आप देखेंगे कि कम से कम 2 सेकंड और एक फर्स्ट जो है वो इसी तरह से विन होगा और इसी कोड के साथ या यहाँ से दोनों तरफ से ज़रूर विन होगा। ना जमा ना ज़रब ना तफरीक वाले कायदे में अक्सर व बेशतर मेरे दोस्तों फर्स्ट का नंबर नहीं चलता। याद रखें, यहाँ से फर्स्ट का नंबर काफ़ी दफ़ा नहीं भी चलता, उसके लिए 40 स्टेप बनाने ज़रूरी होते हैं क्योंकि मीज़ान काम नहीं करती। जैसा कि गुज़िश्ता थाई लॉटरी में भी आप देख रहे हैं कि वहाँ से वो जो 95 की जज़र थी वो यहाँ से मीज़ान के एतबार से 91 नहीं दे रही, 96 दे रही है, जबकि 91 वहाँ से नहीं चलता उस तरह से। लेकिन वही नंबर यहाँ से ज़रूर चलेगा। तो दोस्तों बजाय देखें, जितना वो पंजाबी में कहते हैं ना, जितना गुड़ उतना मीठा, तो जितनी आप मेहनत करेंगे उतना ही ज़्यादा बेनिफिट और उतना ही ज़्यादा आला किस्म का फ़ायदा आपको हासिल होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि इंशाल्लाह ताला आप इस पर थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे। मज़ीद डिटेल और तफसील के लिए आप मेरे साथ रब्ता भी कर सकते हैं। आप चाहें तो ये सीख भी सकते हैं, मैं सिखाने के लिए तैयार हूँ। जो दोस्त भी जानना चाहे, सीखना चाहे, वो मेरे साथ रब्ता कर सकता है। और इसके अलावा दोस्तों इसकी पूरे कोर्स की USB मौजूद है, वो लेना चाहें वो ले सकते हैं। और अगर आप यही वीडियो, इस तरह की वीडियोस और पूरे हिसाब की मुकम्मल डिटेल तफसील देखना चाहें तो यो फैन चैनल पर आ जाएं, उसको सब्सक्राइब कर लें। और उसको तो ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, क्योंकि वहाँ पे मैंने बहुत सारा काम करना है और इंशाल्लाह ताला आपके लिए बहुत सारी आसान और सही चीज़ें वहाँ पे मैंने रखनी है और कुछ रखी भी हैं और मज़ीद इंशाल्लाह ताला उस पर रखेंगे। चाहता हूँ कि आप दोस्त उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि वो बराह रास्त आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन की सूरत में तमाम की तमाम स्ट्रेटजीज़ आप तक पहुँच जाएँ। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है दोस्तों, और मेहरबानी फरमाएं उसको भी सब्सक्राइब कर लें ताकि जो पोस्ट्स मैं वहाँ पे शेयर करूँ और उनके बैक में वीडियो होगी वो आप आसानी के साथ मुतलका चीज़ को गौर के साथ देख सकेंगे। तो आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है दोस्तों, इसके लिए माजरत चाहता हूँ, लेकिन ज़रा इंफॉर्मेटिव काम था इसलिए थोड़ा काम ज़्यादा करना पड़ा। इंशाल्लाह ताला उम्मीद रखता हूँ कि जो दोस्त इस पर फोकस करेंगे वो इसमें ज़रूर कामयाबी हासिल करेंगे। बाकी तफसील के लिए नेक्स्ट वीडियो का थोड़ा सा इंतज़ार करें। कल खैर हुई तो या परसों इंशाल्लाह ताला आपकी खिदमत में नेक्स्ट वीडियो में ये जजरें बनाकर और कोड के सारे तरीक़ेकार जो हैं दोनों तरफ से वो आपके साथ शेयर किए जाएंगे दोस्तों। तब तक के लिए आप इजाज़त फरमाएं, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।